100 سے 120 بزرگوں سے علم سیکھا تھا، حالانکہ ماں نے بددعا بظاہر نہیں دی تھی کہ ان کا مرتبہ ولیوں میں بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کا ہے ان فرشتوں میں، طرح سے بددعا دی کہ جا تو مسجد الحرام کا امام بن جا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ولیوں کے بارے میں کیا کیا چیزیں کہتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل۔ اس طرح سے ایک بچے کو حرم شریف کا امام بنا دیا جاتا ہے صرف ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، ماں کی بددعاؤں کی وجہ سے۔ یہ چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں کہ ہماری عطا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہماری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے بیٹا ایسا کرو کہ ہم نے اپنے سارے حقوق تمہیں معاف کیے، تم جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ صورتیں ہمارے سامنے سے بار بار گزرتی ہوں گی لیکن ہم لوگ کبھی بھی ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتے۔ ہم دو لوگوں کا شکر ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا قصہ لاجواب کر دے گا آپ کو کہ تو کہنے لگے وہ بچہ میں ہوں۔ قصہ اتنا دلچسپ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ماں کی دعائیں کس طرح سے بچوں کے کام آتی ہیں اور کس طرح سے بددعائیں بھی بچوں کے کام آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ماں کی دعاؤں اور بددعاؤں کے بارے میں۔ کس طرح سے ایک بچے کو حرم شریف کا امام بنا دیا جاتا ہے صرف ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، ماں کی بددعاؤں کی وجہ سے۔ وہیں دوسری طرف ایک بزرگ ایسی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ولیوں کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ ولیوں میں بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کا ہے ان فرشتوں میں۔ تو اس طرح کی پوزیشن آپ صرف پا سکتے ہیں ماں کی دعاؤں اور بددعاؤں کی وجہ سے۔ تو ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ماں کے بارے میں کیا ہدایتیں دی ہیں۔ آپ کو سورہ لقمان اور سورہ الاسراء کی آیتیں دکھ رہی ہوں گی، اس کے اندر ماں کے بارے میں ذکر ہے۔ اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ روز قرآن شریف پڑھتے ہوں گے یا جمعے کو پڑھتے ہوں گے یا مہینے میں ایک بار پڑھتے ہوں گے، نہ صحیح تو رمضان میں ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ صورتیں ہمارے سامنے سے بار بار گزرتی ہوں گی لیکن ہم لوگ کبھی بھی ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مطلب کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے کیا مقام رکھا ہے ماں کا، کیا مرتبہ رکھا ہے ماں کا۔ ان کے بارے میں کبھی نہیں سمجھتے ہیں کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے، اور ہم سلسلے وار طریقے سے قرآن شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو مرتبہ اللہ نے رکھا ہے اس کا پروف ہم آپ کو کس طرح سے سامنے دکھاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ماں کی دعائیں کس طرح سے بچوں کے کام آتی ہیں اور کس طرح سے بددعائیں بھی بچوں کے کام آتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی، اس پکچر کو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جو تھوڑا سا دین سے واقفیت رکھتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ کون ہے۔ اور ویسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت سینئر امام ہیں حرم شریف کے ہیں، جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمن السدیس۔ یہ بہت سینئر امام ہیں۔ آپ ایک وقت میں کیا کر رہے تھے، لوگوں کے بیچ میں درس کر رہے تھے، تو درس کرتے کرتے آپ نے ایک قصہ سنایا اور قصہ اتنا دلچسپ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ پورا قصہ ضرور سنیے گا۔ بات یہاں پر نہیں ختم ہوتی ہے جب قصہ وہ سنا رہے تھے، لیکن قصے کے اینڈ میں جو انہوں نے بتایا وہ قابل تعریف ہے، تو پورا قصہ ضرور سنیے گا۔ آپ ایک وقت میں قرآن کا درس دے رہے تھے، وہاں پر آپ نے اچانک ایک بچے کی کہانی شروع کر دی اور بتایا کہ بہت زیادہ شرارتی تھا اور شرارت کے انتہا تھی، اور اس کے بعد ایک وقت میں مہمان آئے، اور مہمان آنے کے بعد ہوا یہ کہ اس بچے کی ماں نے بہت ہی اچھے سے بہت زیادہ کھانے بنائے، بہت لذیذ کھانے بنائے اور ان کھانوں کو اپنے مہمانوں کے قریب لے جا کر رکھا، یعنی کہ دسترخوان لگایا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اب بچہ اتنا زیادہ شرارتی تھا کہ اس نے کیا کیا کہ ساری اس کھانے میں ڈال دی۔ اب کھانے میں ڈالنے کے بعد ماں کو اتنا زیادہ غصہ آیا، اتنا زیادہ غصہ آیا کہ ماں کیا کہتی، کوئی ان کے پاس جواب نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا۔ اور اس کے علاوہ سامنے بے عزتی بھی ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تماشا ہو گیا کہ بچے نے اس طرح سے کھانے کو بھی برباد کیا اور ساتھ میں ان کی ذلت بھی کروائی۔ تو ان کو کچھ نہیں نکلا ان کے منہ سے، تو انہوں نے اپنے بچے کو اس طرح سے بددعا دی کہ جا تو مسجد الحرام کا امام بن جا۔ یہ ایک طرح سے ماں کی بددعا تھی۔
और इस किस्से को सुनाते हुए इमाम साहब की आंखों में मतलब आंसू थम नहीं रहे थे, इस तरह से उनकी आंखों में आंसू आना कौन है और इस वक्त वो कहाँ पर है। तो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, दर्स कुरान सुन रहे थे, उन्होंने नामे मुंडी हिलाई, सर हिलाया और कहा कि इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो कहने लगे वो बच्चा मैं हूँ। और इस जवाब को सुनकर वहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए तो वो हैरान ज़दा रह गए कि किस तरह से माँ की बद्दुआ भी बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। और हम सभी माँओं को ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए मुँह खोलें तो ज़रूर उनके लिए दुआ ही निकले, वो भले ही बद्दुआ के तौर पर हो, लेकिन लफ्ज़ माँ के बारे में कभी भी माँ के मुंह से अपने बच्चे के बारे में कोई भी बद्दुआ का लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा देता है ये आप नहीं समझ सकते हैं, और इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल हमारे और आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से एक वाक़या बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी है। आप इनके बारे में भी ज़रूर सुनिएगा और इनका किस्सा लाजवाब कर देगा आपको कि किस तरह से ये माँ की ताज़ीम में रात रात भर खड़े रहते थे। बहुत दिलचस्प किस्सा है, आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक वक्त ऐसा आया कि आप बचपन का वक्त था और आप मदरसे में दर्स कुरान यानी कि कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। तो एक सूरत आपके नज़र के सामने से गुज़री जो कि सूरत लुक़मान की थी, और उसमें माँ के अहकाम और अल्लाह के अहकाम बयान किए हुए थे। उसमें ये कहा था कि माँ का भी शुक्र अदा करो और अल्लाह का भी शुक्र अदा करो। अब इस आयत को वो लेकर घर पर पहुँचते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, हम दो लोगों का शुक्र एक साथ अदा नहीं कर सकते हैं, या तो आप अल्लाह से पूरा का पूरा हमें मांग लीजिए, या मुझे अल्लाह के वास्ते के लिए छोड़ दीजिए, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाने के लिए हमें छोड़ दीजिए और हम अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकें। तो माँ तालीम याफ्ता थी, बुज़ुर्ग थी। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा करो कि हमने अपने सारे हुकूक तुम्हें माफ़ किए, तुम जाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो उसी वक्त माँ से इजाज़त ली, आप घर से निकल गए, और निकलने के बाद आपने लगभग 3 साल तक वीरानों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जंगलों में गुजारी। और उसके बाद आपने बड़े-बड़े औलिया अल्लाह बुज़ुर्गों के पास तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद आप एक वक्त में ऐसा वक्त आया कि दिल में ख़्याल आया कि चलो माँ के हालचाल पूछ लेते हैं। और माँ के हालचाल पूछते वक्त आप लगभग माँ से 30 साल अलग रहे थे, और 30 साल के बाद आप अपनी माँ के पास वापस पहुँच रहे थे। तो जब माँ के पास आप पहुँचे वापस, तो आपने एक आवाज़ अंदर से सुनी कि माँ वज़ू करते जा रही हैं और एक बात वज़ू में कहती जा रही, या ये कह सकते हैं कि एक दुआ मांगती जा रही है अल्लाह से कि अल्लाह हमारे बच्चे, हमारे मुसाफिर की हिफाजत करना, और उनको बुज़ुर्गों के बीच में वो मर्तबा हासिल, उनको बुज़ुर्गों का प्यारा बनाना, यानी कि उनको बुज़ुर्गों का सबसे करीबी और हमदर्द और कब सबसे मोहब्बत करने वाला बनाना। इस तरह की दुआ मांगती जा रही थी। उसी वक्त बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खटखटाया, और अंदर से आवाज़ आई कि कौन? तो आपने कहा कि आपका मुसाफिर। तो उस वक्त उनको इस बात का एहसास हुआ कि जितनी चीज़ें हमने हासिल की हैं, ये हमारी अता की हुई नहीं है, बल्कि हमारी माँ की दुआओं की वजह से हमें हासिल की हुई है। और फिर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि हम जिस काम को बाद के लिए छोड़ रहे थे, अल्लाह वो हमसे पहले ही कराना चाहता था। तो हुआ ये कि बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पास उस वक्त तक रहे जब तक माँ हयात रहीं, और आपने माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत की। इन्हीं खिदमतों में से, बहुत सी खिदमतों में से एक दो खिदमत हम आपके बीच में ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि माँ को जब प्यास लगी हुई थी, और मटके में या घड़े में जो कुछ भी उस वक्त मौजूद होता था उसमें पानी नहीं था। तो जब माँ ने बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पानी के लिए कहा, तो घर में पानी मौजूद ना होने की वजह से आप करीब के नदी में जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। अब पानी लाने में थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है, तो माँ की आँख लग जाती है और माँ सो जाती हैं, उनको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद होता ये है कि बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात
कटोरा हाथ में लिए हुए पानी का आपके सरहाने पर अपनी वालिदा के सरहाने पर खड़े रहते हैं और जगाते नहीं हैं। और उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड था, यहाँ तक इतनी ठंड थी कि पानी जमने लगा था उस कटोरे का। पूरी रात के बाद जब माँ की आँख खुली तो कहा कि बेटा, कटोरा तुमने रख क्यों नहीं दिया, और तुम पानी का कटोरा यहाँ रख देते। तो आपने कहा कि नहीं, पता नहीं है आपकी आँख किस वक्त खुलती और आप बेदार होते और आपको पानी की ज़रूरत पड़ती, और हम उस वक्त मौजूद ना होते, इसलिए हम पानी का कटोरा लिए खड़े रहे जिससे कि आपकी आँख खुले और आप इस पानी को पी सकें। तो ये था बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब का माँ की खिदमत का सिला। और दूसरी तरफ एक वाक़या और बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है कि एक वक्त माँ ने कहा कि बेटा, बाहर का एक दरवाज़ा, एक पल्ला खोल दो। तो अब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब पूरी रात यही सोचते रहे कि हम कौन सा पल्ला खोलें, कि माँ किस पल्ले की बात कर रही हैं। आपने पूछा नहीं कि किस पल्ले को खोलना है, बल्कि आप पूरी रात यही सोचते रहे कि किस पल्ले को खोलें, दाएं को खोलें या बाएं को खोलें। अगर दाएं के खोलें और माँ ने बाएं के लिए कहा तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा और उनकी हक़ तलफ़ी होगी। तो इस तरह से बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की खिदमत ज़िंदगी भर करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि वलियों में ऐसा मुकाम है कि जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया है कि जहाँ पर सारे वलियों का मुकाम ख़त्म होता है, वहाँ से बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की शुरुआत होती है। तो इस तरह के वली थे आप, बायज़ीद बस्तामी, और ये सिर्फ़ किस वजह से हो पाया, ये सिर्फ़ माँ की दुआओं की वजह से हो पाया था। और माँ ने इस तरह से बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को दुआ दी थी और आपने इस तरह से माँ की खिदमत की थी कि आप इस मुकाम पर फैज़ थे। अब जब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि आप लोग तो बहुत कम शायद जानते होंगे बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में। इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको ज़रूर देते हैं जितनी हमारी इल्म में है। आप बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक 100 से 120 बुज़ुर्गों से इल्म सीखा था, और ये ऐसा इल्म सा था कि इल्म नूरानी था, इल्म रूहानी था, हर तरह की तालीम आपने 100 से 120 बुज़ुर्गों से, वलियों से ये इल्म सीखा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि इतने ज़्यादा बुज़ुर्गों से आपने इल्म सीख लिया था कि इल्म के आप खुद भी कहा जा सकता है कि समंदर हो चुके थे। इसके बारे में भी हम बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा सुनाते हुए बात को ख़त्म करेंगे। जब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे हुए थे तो एक साहब आपके पास आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी कभी कोई करामात नहीं देखी। तो कहने लगे ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपने कोई करामात नहीं देखी हो, हम रोज़ करामात करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा कि किस तरह से, कहते हैं कि हम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। और ये इससे बड़ा मैजिक और कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप सुन्नत पर अमल कर सकें, और नहीं है। अगर आप भी करेंगे तो आप भी इसी दर्जात पर बुलंद हो जाएंगे। और हम में से बहुत से लोग वलियों के बारे में क्या क्या चीज़ें कहते रहते हैं, और उनमें से जितने भी लोग कहते हैं उसमें से शायद ही दिन भर में 1 या 2 या 4 सुन्नतों पर, नमाज के अलावा 4 सुन्नतों पर, 5 सुन्नतों पर भी कोई अमल करता हो। किसी के ऊपर भी उँगली उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब के ये हालात थे ज़िंदगी के, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि माँ की दुआओं की वजह से, और हरम शरीफ के इमाम साहब इस मुकाम पर थे सिर्फ़ इसलिए क्योंकि माँ की बद्दुआ की वजह से। हालाँकि माँ ने बद्दुआ बज़ाहिर नहीं दी थी, ठीक है? उन्होंने दुआ ही दी थी, लेकिन उन्होंने गुस्से की हालत में भी अपने ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखा कि मुँह से कोई बद्दुआ नहीं निकाली। और आजकल हम ये देखते हैं कि हर दूसरा लफ्ज़ बच्चों के लिए माँ की तरफ से बद्दुआ ही निकल रहा होता है। तो हमें, हमारे बुज़ुर्गों को ये भी एहतियात करना चाहिए कि कभी भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए अपने बच्चों को, जिससे कि उनकी ज़िंदगी के हालात इस मुकाम तक पहुँच सकें, ऐसी जगह पे पहुँच जाएँ कि हम फिर खुद पछताएँ और बाद में बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।